हेलो एवरीवन, लेट्स वेलकम टू टुडेस क्लास। प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेंगे, उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। तो सॉलिड स्टेट, as you know, there are two factors is responsible whether a substance is present in solid form or liquid form or in gaseous form. Two factors is responsible. First factor is intermolecular force and second factor is thermal energy. कोई भी सब्सटेंस वो सॉलिड में रहेगा या लिक्विड में रहेगा या गैसेस में रहेगा, ये सब डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर। एक है उनके बीच में कितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और दूसरा उनमें से उनके पास कितना एनर्जी है, थर्मल एनर्जी। ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट का क्या क्या कंडीशन है। कोई सब्सटेंस अगर सॉलिड स्टेट में रहना चाहता है तो व्हाट आर द कंडीशन। सो फर्स्ट कंडीशन इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, then only the particles are closely packed with each other, right? So then thermal energy must be less. Already you know, in our previous class we discussed about thermal energy. So who can say what is thermal energy? Yes, the energy which is possessed due to temperature is called thermal energy. और हमें पता है कोई भी एक सब्सटेंस में एनर्जी जितना ज्यादा होगा, जो पार्टिकल के बीच में जो वाइब्रेशन जो है वो ज्यादा होगा। वाइब्रेशन ज्यादा होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने से पार्टिकल क्या होता है, आपस में मूव होता है, आपस में दूर जाना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए थर्मल एनर्जी जो है सॉलिड स्टेट के लिए हमेशा लो होना चाहिए, तब जाके पार्टिकल के बीच में जो वाइब्रेशन जो है वो कम होगा और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो समझ में आ गया। तो अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, क्विक रिकैप कर लेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। आप लोगों को पता है बिकॉज द सॉलिड हैव strong intermolecular force of attraction, that's why they have definite shape and definite volume, and also their intermolecular distance are short. Why? Because strong force of attraction, and also they have they diffuse slowly. Already you know what is diffusion. Diffusion means intermixing of two or more substances completely. So due to they have strong intermolecular force of attraction in between the particles, they do not diffuse with each other. That's why they diffuse slowly as compared to solid and gas. And also they are incompressible, rigid and high density. So they are incompressible. कंप्रेस नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्लोजली है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, तो हम ज्यादा उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। इनफैक्ट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी और रिजिड, साथ ही साथ हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में जो मास है उसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ मास ज्यादा है, इसीलिए हम जो सॉलिड जो है हाई डेंसिटी। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब थोड़ा सा देख लेंगे टाइप ऑफ सॉलिड। सो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इनसाइड द सब्सटेंस, द सॉलिड्स आर टू टाइप। वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड and another one is amorphous solid. Let us see the image. There are three images are there. Already in last class we already watched it. This is copper sulfate and this is common salt and this is the sugar. You just zoom the copper sulfate and watch it. You can see the copper sulfate crystal and the zoomed version of copper sulfate crystal. You can see and compare it, observe it. तो यहाँ पे हमें क्या कंक्लूजन मिला? हमें कंक्लूजन मिला every crystalline solid consists of small crystal and every crystal is having a
unique geometrical shape, and all the crystals are orderly arrangement. So this is called crystalline solid. Now let us discuss the definition, a very small definition. A solid that is characterized by a regular ordered arrangement of particle, that is called crystalline solid. Regular and orderly arrangement, that is called crystalline solid. देखो जितना भी सॉलिड है, जो भी हमें डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लाइक मेटल्स, डायमंड, ग्राफाइट एंड ऑल द ionic salts, all are comes under crystalline solids. ठीक है. अब amorphous solid क्या है? फिर से watch the image. This is the rubber and this is the glass, and go to the zoomed version of the rubber. You can see and observe it. Is there any special shape of the crystal? No. You can watch it. यहाँ पे जो amorphous solid है, it is cannot consist of small identical crystal. Instead of that, they are every particle is different in the amorphous solid. So you can see generally, because of there is no regular orderly arrangement of particle, that's why the amorphous is called shapeless. In fact, amorphous, the name is itself coming from a Greek word. It means amorphy. Amorphy means shapeless. क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं है, तो इसीलिए हम इसको शेपलेस सॉलिड मतलब एमरफस सॉलिड कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ एमरफस सॉलिड, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एमरफस सॉलिड बोथ आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर. तो दोनों को अच्छी तरह से अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे को कंपैरिजन करके अगर हम पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगा. तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी लिखा गया है और आपके स्क्रीन के ऊपर एमरफस सॉलिड का प्रॉपर्टी लिखा जाएगा. तो दोनों आप एक साथ कंपैरिजन करके समझना है हमें और साथ ही साथ लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, properties of crystalline solid. The first property, it is definite geometrical shape. As you know, the crystalline solids are regularly orderly arranged. That's why they have a particular definite geometrical shape. There are different geometrical shapes are there, which we are going to study later. Next one, that is long range order. ये क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर को समझने के लिए पहले देखिए ये इमेज को. ये एक 3 डायमेंशनल शेप है, देख पा रहे हैं. देखिए यहां पे हम अगर एक साइड में रह के अगर देखेंगे तो हमें ये पता चल सकता है कि दूसरी साइड में इसका शेप क्या होगा. तो इसी को हम कहेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर. और ये इमेज को देखिए ये एमरफस का इमेज है और ये क्रिस्टलाइन का इमेज है. देखिए क्रिस्टलाइन का जो इमेज है उसमें एक रेगुलर शेप जो है, रेगुलर जो ऑर्डर है वो एक लंबी दूरी तक रिपीटेड होता जा रहा है. मगर यहां पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर को देखिए, यहां पे क्या रिपीटेड है शेप? नहीं. तो इसी को हम कहेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर. तो समझ में आ गया व्हाट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड व्हाट इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर. एक बार फिर से, व्हाट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर? जनरली द लॉन्ग रेंज ऑर्डर आर possessed by the crystalline solid, in which
when you can see the arrangement of one side of a crystal, then it can be easily for prediction of the shape or order of other side. That is called long range order. उसी तरह अगर हम एक साइड का अरेंजमेंट देख के दूसरी साइड या किसी भी और साइड का अरेंजमेंट के बारे में हमें पता नहीं चल सकता है, तो उसी को हम कहेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। समझ में आ गया? एक बार फिर से एमोर्फोस का एक इमेज देखिए। ये इमेज आप देख पा रहे हैं क्लियरली, यहाँ पे हर एक जो शेप है वो अलग अलग है। तो हम एक शेप को देख के हम दूसरा साइड शेप का कोई भी और साइड का जो शेप है उसको हम नहीं देख पाएंगे या प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसी को हम कहेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एक और अगर हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो एक साइड अगर हम देख लेंगे तो किसी भी साइड का जो शेप है हमें पता चल जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो अब हम और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो है एनआइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी। ये दोनों नया है। देखो, आइसोट्रोपी जो कि एमोर्फोस सॉलिड में पाया जाता है। आइसो मीन्स यू नो सेम। तो यहां पे क्या सेम है? देखो, कुछ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मेटालिक स्ट्रेंथ, all are same throughout the different plane in the amorphous solid. So what is anisotropy and what is isotropy? तो सबसे पहले आइसोट्रोपी को एक बार फिर से समझते हैं। देखो, ये एक एमोर्फस सॉलिड है जहां पे कुछ रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो आइसोट्रोपी क्या है? द प्रॉपर्टी which is same throughout the different plane of the substance, that is called isotropy. And what are the property? Such as thermal conductivity, electrical conductivity, metallic strength and refractive index. मान लीजिए किसी एक प्रॉपर्टी को ले लेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये एक एमोर्फस सॉलिड है। यहां पे अगर हम चेक करेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में हम क्यों ना हमें देखेंगे, तो यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी है या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये हमेशा सेम रहता है। आप चाहे ये डायरेक्शन में देख ले या फिर ये डायरेक्शन में देख ले या फिर ये डायरेक्शन में देख ले, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है सेम रहेगा थ्रू आउट द एंटायर प्लेन, एंटायर पार्टिकल। बट अगर हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के बारे में, तो यहां पे सेम नहीं रहेगा। यहां पे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे, ये प्लेन में जाएंगे और ये प्लेन में जाएंगे और ये डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे तीन डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का और इलेक्ट्रिसिटी का तीन अलग अलग अमाउंट मिलेगा। तो इसी को हम कहेंगे एन आइसोट्रोपी, जो कि आइसोट्रोपी से पूरी तरह से ऑपोजिट है। एक बार फिर से, आइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी, आइसो मीन्स यू नो सेम। एंड यहाँ पे क्या सेम है? यहां पे जो प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि बोलो, हाँ, ये सारे प्रॉपर्टी जो है पूरी तरह से सेम है थ्रू आउट डिफरेंट प्लेन। तो इसी को कहते हैं आइसोट्रोपी। और एनाइसोट्रोपी क्या है? सच प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट थ्रू आउट डिफरेंट प्लेन। अच्छा, एक सवाल है, यहां पे आइसोट्रोपी क्यों दिखाई पड़ता है? यहां पे तो डिसऑर्डर है चारों तरफ और यहां पे ऑर्डर है, तो यहां पे आइसोट्रोपी नेचर ये एमोर्फस सॉलिड क्यों दिखाता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये एनाइसोट्रोपी क्यों दिखाता है? अच्छा, इसको जानने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम देखें। मान लीजिए एक रूम में कुछ लोग हारमोनियम बजा रहे हैं, दूसरे रूम में कुछ लोग गिटार बजा रहे हैं और तीसरा रूम में कुछ लोग जो है वो ड्रम बजा रहे हैं। आप क्या किए, सभी रूम के एंट्री गेट के पास गए, तो क्या होगा? पहला रूम में हारमोनियम सुनाई देगा, दूसरे रूम में वही गिटार और तीसरे रूम में ड्रम सुनाई देगा। तो हर एक रूम में अलग अलग तरह का एक सिस्टमेटिक आवाज आपको सुनाई देगा और हर एक रूम में अलग अलग होगा, क्योंकि हर रूम में जो है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, मान लीजिए एक रूम में सभी जो लोग हैं ड्रम, हारमोनियम और गिटार बजा रहे हैं, तो वही रूम का अगर आप एंट्रेंस गेट में अगर जाके सुनेंगे तो क्या सुनाई देगा? बोलिए, आपको एक नॉइज सुनाई देगा।
और वो एक ही तरह का लगेगा, आप उसमें कोई फर्क नहीं लगे देगा कि क्या कौन सा ड्रम है या फिर कौन सा हारमोनियम है और कौन सा गिटार है, क्योंकि एक ही रूम में वो सब जोर से बजा रहे हैं। तो कुछ उसी तरह यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होगा, एमोर्फस सॉलिड में आप हर एक डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डिसऑर्डरनेस, कोई ऑर्डर नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है, आप किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना गए, हर एक डायरेक्शन में सेम होगा व इक्वल होगा। मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे या फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हर एक लाइन में हमें हर एक अलग अलग तरह का पार्टिकल को सामना करके पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो कुछ इस तरह से पार्टिकल को सामना करना पड़ेगा, इस लाइन में अगर जाएंगे तो कुछ अलग तरह का पार्टिकल सामना करना पड़ेगा, और इस लाइन में अगर जाएंगे तो अलग तरह का पार्टिकल को सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एनाइसोट्रोपी प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करता है, और हर एक प्लेन में इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये हर एक प्लेन में हर एक अलग अलग होता है। तो ये था एनाइसोट्रोपी प्रॉपर्टी एंड आइसोट्रोपी प्रॉपर्टी। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे और एक प्रॉपर्टी, जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मान लीजिए 500 डिग्री सेल्सियस में अगर हम कोई एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को लेंगे तो वो मेल्ट होना शुरू होगा। मगर यहां पे अगर हम एमोर्फस सॉलिड को अगर बात करेंगे तो एमोर्फस सॉलिड जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं दिखाई देगा, मतलब इट मेल्ट्स ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। मान लीजिए वो 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो सब मेल्ट होने लगेगा। तो इसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को इट मेल्ट इट ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और एमोर्फस सॉलिड जो है आपको मेल्ट ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, और एक बात, क्या हम एमोर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, हम एमोर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी एमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एमोर्फस सॉलिड को अगर हम रेगुलरली हाई टेम्परेचर में हीट करेंगे तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो जो ग्लास जो मिला है एंशिएंट सिविलाइजेशन से, उसमें सम क्रिस्टल अपीयरेंस मिला है। ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि इट कन्वर्टेड एमोर्फस सॉलिड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। और उसी तरह आप ये एग्जांपल को देखिए, ये एक क्वार्ट्ज है जो कि एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। तो इसको अगर हम हाई टेम्परेचर में हीट करेंगे और रैपिडली कूलिंग करेंगे, रैपिडली अगर कूल करते जाएंगे तो ये जो क्वार्ट्ज देख रहे हैं ये टेट्राहेड्रल शेप है, और ये क्वार्ट्ज के रूप में जब रहता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको कहते हैं। मगर इसको हम रेगुलरली रैपिडली हीट करेंगे और रैपिडली कूल करेंगे तो क्या होगा, ये एमोर्फस जो है क्वार्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रहा कैसे हम एमोर्फस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करेंगे? सिंपली व्हेन वी हीट इट देन एमोर्फस सब्सटेंस जो है वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। मगर यहाँ बहुत सारे टर्म और कंडीशन अप्लाई होगा, सभी एमोर्फस सब्सटेंस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होगा। और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है वो रैपिडली हीट करेंगे और उसके बाद हाई टेम्परेचर में हीट करके उसके बाद रैपिडली हम वो जो मेल्ट को अगर हम कूल करेंगे तो होगा ये कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय होके वो एमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम पढ़ेंगे द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पे हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? सिंपली द हीट ऑफ फ्यूजन मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉलिड, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब पिघलना। सो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो डेफिनाइट रहता है,
मगर एमरफस सॉलिड में हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनाइट नहीं रहता है, नो डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन. नेक्स्ट, when we cut a crystalline solid, it gives plain and smooth surfaces. But when you cut a amorphous solid, you can get the plain and smooth surfaces. For example, if you cut a orange, you can see the two faces are having irregular shape. But if you cut an apple, then you can got the plain and smooth surfaces. Just like that, you can see the image also. और एक बात ये है, यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड कहते हैं, क्योंकि सॉलिड का जो एक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, जो हम पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक्चुअली सभी प्रॉपर्टी एग्जैक्ट पाया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में. मगर एमरफस सॉलिड को सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं. तो क्यों लिक्विड कहते हैं? क्योंकि एमरफस सॉलिड में क्या है, उसमें कुछ लिक्विड के नेचर रहते हैं. मान लीजिए लिक्विड को अगर हम पूरी तरह से कूल करेंगे, अच्छी तरह से, इसको हम कहेंगे सुपर कूल करेंगे, तो वो सुपर कूल लिक्विड का अगर हम एक इमेज लेंगे और एक एमरफस का अगर पार्टिकल का एक इमेज अगर लेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल में, अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें पाया जाएगा कि एक सुपर कूल लिक्विड का जो भी पार्टिकुलर का अरेंजमेंट जो है वो पूरी तरह से इक्वल होता होगा एमरफस सॉलिड का जो इमेज के साथ. तो इसको हम सुपर कूल लिक्विड कहते हैं. हाँ, और एक बात आप देखेंगे, जो बहुत पुराने बिल्डिंग में जो ग्लास लगा होता है, निचले हिस्से में आप देखेंगे उसका जो थिकनेस है वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द टॉप पोर्शन. सो टॉप पोर्शन में जो थिकनेस है वो कम रहता है और बॉटम पोर्शन में जो थिकनेस जो है वो ज्यादा रहता है. तो इसीलिए हम ग्लास को सुपर कूल लिक्विड भी हम कह सकते हैं. ये है लिक्विड नेचर ऑफ ए एमरफस सब्सटेंस. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ एमरफस सॉलिड. लेट अस क्विक रिवाइज इट. एक बार और देख लीजिए फिर से क्या क्या हम डिफरेंस आज पढ़े. अब ये कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम लोग करना है. एक केमिस्ट्री होमवर्क कॉपी में ये करना है और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यू दिया गया है. 4 एमसीक्यू है. एमसीक्यू में ओनली ऑप्शन लिख दीजिए, जो भी करेक्ट ऑप्शन है पूरा ऑप्शन लिख दीजिए. और उम्मीद है ये कल तक आप नोटबुक में लिख के व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए. और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं.